Hello students, welcome again in your science class. I hope you all are doing well, right? Okay, so let's start today's session. As we are learning about the nutrition in plants and we have discussed about the two different modes of nutrition in our previous videos, right? Autotrophic mode of nutrition and the heterotrophic mode of nutrition. But what about the mushroom? Have you ever seen the mushroom? Yes, your answer must be yes. आपने ज़रूर देखे होंगे, खाए भी होंगे, बहुत ही टेस्टी होते हैं. Okay, so these are the umbrella-like patches. Umbrella जैसा structure होता है? Yes, and these are the patches growing on the moist surface of rotting wood or in the moist soil during the rainy season. राइट यस, ये मोस्टली रेनी सीजन में ग्रो करते हैं. कहाँ पे? जो मॉइस्ट सॉइल होती है, क्योंकि रेनी सीजन में सॉइल जो होती है वो अपने आप मॉइस्ट हो जाती है, मॉइस्चर हो जाती है. एंड इन द रॉटिंग वुड, जो खराब हो रही होती है वुड, उस पर वो ग्रो कर रहे होते हैं. राइट नाउ व्हाट आर दीज ऑर्गेनिजम्स? These organisms are called fungi. Yes, these organisms are called fungi. And they have the different mode of nutrition. अब हमारे जो बूझो है, which is the character, बूझो wants to know how these organisms get their nutrients, as they do not have the mouth like animals. देखा है आपने? No, they do not have the mouth like animals, and even they do not have the chlorophyll. And in the absence of chlorophyll, they cannot make their own food. राइट तो अब वो कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स को लेंगे? उनको कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा? दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. यस, दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मटीरियल, एंड दीज काइंड ऑफ organisms which get their nutrients from the dead and decaying matter are called saprotrophs. The organisms which get the nutrition from the dead and decaying matter from dead and decaying matter are called the saprotrophs. And saprotrophs use the different mode of nutrition, which is the saprotrophic mode of nutrition. Saprotrophic mode of nutrition. Here we have a different mode of nutrition besides the autotrophic and heterotrophic, that is the saprotrophic mode of nutrition. Saprotrophs, which get the nutrients from the dead and decaying matter, they follow the saprotrophic mode of nutrition. Okay? Clear? All right. Now the question comes, how do they grow? Means हम seeds तो उसके grow नहीं करवाते हैं, हम plant नहीं करते उनको. So how do they grow? The fungal spores are generally present in the air. Fungal spores होते हैं वो air में present होते हैं, and when they land on the surface, okay, when they land on the surface of wet or warm things, जैसे कि हमने बात की moist soil में या वो rotting wood में अगर वो land करते हैं, so they germinate and they started growing. Okay, so let's take an example of pickle. pickle देखा होगा ना आप लोगों ने अपने घर पे, आप खाते ही होंगे. pickle पे भी white स्ट्रक्चर्स कभी कभी ग्रो करते हैं. दे आर फंगस. यस,
we are talking about the fungi and they are also the fungus, but sometimes fungi मतलब वो friends भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। कई बार वो friends की तरह behave करते हैं, like mushrooms हम खाते हैं, कई बार वो एनिमी की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसे कभी कभी वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते कि अगर वो पिकल पे काम कर रहे हो, पिकल पे अगर वो ग्रो कर रहे हो तो दे विल बी हार्मफुल फॉर अस, वो पॉइजन हो जाएंगे। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग सी हम स्टोरी आप बोल सकते हो। दो फ्रेंड्स हैं, इट इज़ द स्टोरी अबाउट द टू फ्रेंड्स। एक फ्रेंड है, दोनों वो पढ़ने जाते हैं एक सिटी में। ओके, अब एक फ्रेंड के पास होम है बट शी डज नॉट हैव फूड, ना तो उसके पास कोई सोर्स है फूड का, ना उसके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि वो फूड मैनेज कर पाए। और जो उसकी दूसरी फ्रेंड है, जो उसकी दूसरी क्लासमेट है, शी हैज़ द फूड इन ह्यूज क्वांटिटी। उसके पास फूड है बिकॉज उसके पापा जो है वो फार्मर है, शी इज़ फ्रॉम द विलेज। ओके, उसके पापा फार्मर है, उनके पास ढेर सारा फूड अवेलेबल है, बट शी डज नॉट हैव द शेल्टर टू लिव। अब क्या करें दोनों ने बीच में एक डील शेयर कर लिया, एक रिलेशनशिप शेयर कर लिया। उन्होंने ये बात की कि चलो ठीक है, मैं आपको रहने के लिए जगह दे रही हूँ, आई विल गिव यू द शेल्टर, आई विल गिव यू द होम एंड यू विल गिव मी द फूड। ओके, तो शी सेड ऑलराइट, मैं कर सकती हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे पास फूड है बहुत सारा, लेकिन मेरे पास शेल्टर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए। तो दोनों ने एक रिलेशनशिप शेयर कर लिया कि उन्होंने उनको, एक फ्रेंड ने उसको घर दिया रहने के लिए और दूसरे फ्रेंड ने उसको फूड अवेलेबल करवा दिया। तो जिसके पास जो चीज़ नहीं थी उसने उसको वो चीज़ दे दी। अब ये कैसा रिलेशनशिप है? दिस इज द सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। दिस इज द सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। यस, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो लोगों ने एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर दिया। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इन द सेम वे, अब आपको पता है कि फंगी जो होते हैं वो, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता एंड दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड। तो अब उन्होंने क्या किया, दे लिव ऑन इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, प्लांट्स ने उनको फूड बना के दे दिया एंड दे हेल्प देम टू गेट द शेल्टर। उन्होंने उनको शेल्टर प्रोवाइड करा दिया, उन्होंने उनको वाटर दिलवा दिया, उन्होंने उनको मिनरल्स दे दिए। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर ली। अब यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ lichens which is an alga। it lives with a fungus, it lives with a fungi। और ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हाउ? As you know that alga is the chlorophyll containing material or substance, right? Alga is a chlorophyll containing partner of fungi। It contains the chlorophyll alga, the lichen contains the chlorophyll and fungi do not have the chlorophyll, और वो खाना नहीं बना रहे। तो उन्होंने क्या किया, इसने इसको फूड प्रोवाइड करा दिया, इसने इसको वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करा दिए। सो दे आर शेयरिंग द सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ओके, they are sharing the symbiotic relationship. Clear? So this was about the symbiotic relationship, the symbiosis relation. Okay, so let's discuss about our next topic, how nutrients are replenishing in the soil। nutrients soil में वापस कैसे आते हैं? as we know that plants use the nutrients, right? तो जब उन्होंने यूज़ कर लिया उसके बाद वापस से न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे सॉइल में? विल डिस्कस अबाउट दिस।
how nutrients are replenishing in the soil. Now, as we know that plants get the nutrients from the soil, right, and they use it. Okay, they use it to grow. So how do they get again the nutrients from the soil? क्योंकि soil में जो nutrient available था उन्होंने use कर लिया, अब वो वापस से वो nutrients soil में वापस कैसे आ रहे हैं? Okay, so farmers use the fertilizers and manure to enrich the soil again. Farmers use the fertilizers and manure. Okay, farmers use the fertilizers and manure और वो कंटेन करते हैं, ये फर्टिलाइजर्स क्या कंटेन करते हैं? दे कंटेन द न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। मतलब किसी ना किसी एक न्यूट्रिएंट को वो कैरी करते हैं। डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। मैन्यूर्स जो है वो नेचुरली बनते हैं एंड दे हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो फार्मर्स use these things, fertilizers and manure, time to time to enrich the soil so that the soil will get the nutrients, the specific nutrient. Okay, अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में। मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप्स जो होते हैं ना, दे यूज द नाइट्रोजन इन ह्यूज क्वांटिटी। मोस्टली वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। अब नाइट्रोजन हमने पढ़ा है प्लांट्स के बारे में, नाइट्रोजन कहाँ से मिल रही है? हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टोमेटा ले लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट दे कांट टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन इट्स नेचुरल वे, राइट? नेचुरली वो नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते प्लांट्स। सो हाउ डू दे गेट द नाइट्रोजन? Yes, they get the nitrogen from the soil. There are different kind of bacteria जो natural nitrogen को एक soluble form में convert करते हैं। The bacterium which is rhizobium. The bacterium rhizobium converts the natural nitrogen into a soluble form or into a usable form for the plants. Convert the natural nitrogen which is present in the atmosphere. So, rhizobium convert the natural nitrogen into soluble or usable form for plants. Okay, so these kind of bacteria live in the roots of the plants. मोस्टली लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपने राइजोबियम के बारे में पहले भी सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में कि राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया। वो डिपेंड करता है अपने फूड के लिए किस पे? प्लांट्स पे। मोस्टली मूंग, बीन्स, पीनट, ये सारे प्लांट्स के या क्रॉप्स के रूट में ये राइजोबियम रहते हैं एंड दे गेट द न्यूट्रिएंट्स और दे गेट द फूड फ्रॉम प्लांट्स। वो क्या करते हैं? शेल्टर मिलता है उनको प्लांट से एंड प्लांट्स गेट द नाइट्रोजन एज राइजोबियम आर कन्वर्टिंग द नेचुरल नाइट्रोजन इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म
and then the plants use the nitrogen, the usable nitrogen. Okay, so राइजोबियम ने क्या किया, प्लांट्स के लिए वही काम किया, उसने नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया यूजेबल फॉर्म में एंड प्लांट्स ने उस यूजेबल नाइट्रोजन को यूज़ कर लिया. ओके, और प्लांट्स ने राइजोबियम को शेल्टर दिया. तो अब ये दोनों कैसा रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस किया था अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सो राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइजोबियम एंड द लेग्यूमिनस प्लांट, plants are sharing the symbiotic relationship. So, rhizobium and leguminous plants are sharing the symbiotic relationship. Okay? So, this was all about the chapter first. We have learned about the different mode of nutrition in plants, and we know most of the plants are autotroph, right? Autotrophic mode of nutrition को follow करते हैं. So, most of the plants are autotrophs. A few plants are the heterotrophs or the saprotrophs. So, this was all about the chapter first, nutrition in plants. So, we will meet in the next video. Till then, stay tuned and don't forget to like, share and subscribe our channel. Bye-bye.